ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনা। এই ঘটনায় শুরু হয়েছে চরম রাজনৈতিক চাপানুতোর। মুর্শিদাবাদে 3 জনের মৃত্যুর ঘটনার পর এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুঘ। 3 জনের মৃত্যুর ঘটনার পরও মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তরুণ চুঘের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা বিরাট লজ্জার বিষয়। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে, হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়েও আপোষ করা হচ্ছে রাজ্যে। তরুণ চুঘ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে বলেন, মমতা ব্যানার্জি এখন মডার্ন জিন্না রূপ ধারণ করেছেন। এই ঘটনা যেন 1940-এর দশকের মুসলিম লীগের কার্যকলাপের প্রতিধ্বনি। রাজ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আজ প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। তার নিঃশব্দতা এক রহস্যজনক মৌনতা, যা একদিকে যেমন লজ্জার, অন্যদিকে তেমন বিপজ্জনকও। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের সঙ্গে তুলনা করে মমতা ব্যানার্জিকে মডার্ন জিন্না বলে উল্লেখ করেন এই বিজেপি নেতা। তার অভিযোগ, 1940-এর সময় মুসলিম লীগ যে ভূমিকা পালন করেছিল সেই একই কাজ করছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে সংখ্যালঘু তোষণ করে হিন্দুদের নিরাপত্তার সঙ্গে আপোষ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তরুণ চুঘের। শোনাবো বিজেপি নেতার বক্তব্য। बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ हिंसा में 3 मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्य में चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से लगातार समझौता करती आ रही है। आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है और उनकी पार्टी टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। आज की घटनाएं 40 के दशक के मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह हैं। तब भी उस समय के हुक्मरानों ने हाथ बांध रखे थे, आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। आज भी बंगाल में जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी, आज तृणमूल कांग्रेस कर रही है। जो जिन्ना कर रहे थे वो ममता बनर्जी कर रही हैं और डायरेक्ट एक्शन जैसी घटिया घटनाएं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के हालत बदतर हो चुके हैं, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट को, देश प्रदेश के न्यायालय को जनहित में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश देने पड़ते हैं। ये राज्य सरकार की विफलता और कानून व्यवस्था में पूरी तरह चरमराने का प्रमाण है। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন রাজ্যে ওয়াকফ সংশোধনী আইন লাগু হবে না। এ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন তরুণ চুঘ। তার প্রশ্ন, একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধিতা করতে পারেন? এ এক প্রকার সাংবিধানিক সীমালঙ্ঘন। এতে আবারও স্পষ্ট হয়েছে তিনি কেবল তোষণের রাজনীতিতেই বিশ্বাসী। শোনাবো বিজেপি নেতার অভিযোগ। ममता बनर्जी का यह कहना कि हम कानून लागू नहीं करेंगे, सीधे सीधे संविधान की अवहेलना और बाबा साहब अंबेडकर जी के संघीय ढांचे का अपमान है। बंगाल की जनता जान चुकी, तुष्टीकरण की राजनीति और संविधान के अपमान करने वाली तृणमूल कांग्रेस अब राज्य की शांति एकता के लिए खुद ही खतरा बन चुकी है। उपद्रवियों को खुद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी उकसा रही है। आज देश जानना चाहता है टीएमसी और उपद्रवियों के बीच में क्या रिश्ता है। ममता जी, क्या रिश्ता है, देश जानना चाहता है। মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ঘর থেকে বের করে টেনে শেষ করা হয়েছে। এই হিন্দুরাও দলিত ছিলেন, গরিব ছিলেন, এমনই দাবি করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তার আরও দাবি, এই হিন্দুদের জমির উপর অধিকার ছিল সবার আগে, কিন্তু তাদের জানে শেষ করে দেওয়া হলো। সংশোধনী ওয়াকফ আইন নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল থেকে অশান্তির সূত্রপাত হয় মুর্শিদাবাদে। এখনো পর্যন্ত 3 জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। হাইকোর্টের নির্দেশে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার শামশেরগঞ্জ সুতিসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এবার খোদ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর গলায় উদ্বেগের সুর। শোনাবো কি বলেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो
एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। बहनों और भाइयों, और जब इन मुद्दों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए आज कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है। ये राष्ट्र नायकों का अपमान करने पर उतारू हो चुकी। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी थी। লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।